Dear students, today we will discuss the Indian Parliament. So already we have discussed in the previous video. This slide means it is the supreme legislative body in India, and the Parliament comprises the President of India and the two houses, that is Lok Sabha. Lok Sabha is otherwise called House of the People, and Rajya Sabha is otherwise called Council of States. So what is the meaning of Parliament? Okay, so Parliament means the president, the council of states and the house of the people. Means ये तीनों को लेकर के पार्लियामेंट बना हुआ है. So first we will discuss about the council of the states, means house of the people, means that is the Lok Sabha. Lok Sabha is also known as the house of the people or the lower house and has members from 552 and optional parliamentary constituencies. यहाँ पे मतलब 552 तक मैक्सिमम मेंबर्स यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन नाउ 545 मेंबर्स आर देयर इन आवर लोकसभा एंड 7 इन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से आएंगे 7 जो कि अभी नहीं है, प्लस 543 जो है कि फ्रॉम 530 मेंबर्स फ्रॉम ऑल द स्टेट्स एंड 13 फ्रॉम ऑल द यूनियन टेरिटरीज एंड प्लस 2 मींस दैट 2 मेंबर्स आर द एंग्लो इंडियंस and they are nominated by the president. So all of its members are directly elected by citizens of India on the basis of universal adult franchise. लोकसभा का सारे members जो है ये लोग directly elect होते हैं voting system के माध्यम से, जिसको universal adult franchise बोला जाता है, except two who are appointed by the president of India. Okay, ये जो 2 एंग्लो इंडियंस जो है ये दोनों को ही सिर्फ प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट करते हैं. नेक्स्ट see, it is the slide means, but it is the slide of 2014 means leadership. Speaker Sumitra Mahajan उस समय में थे. Now ओम बिरला. Deputy Speaker also during that time थुम्बी दुराई थे. ये AIADM के पार्टी के थे. मतलब ये जो है हमारा 2014 का सीट है, एक डाटा है. So you have to change the names. And the Rajya Sabha. So the Rajya Sabha is also known as Council of States or the Upper House. इसको Council of States बोला जाता है and ये है Upper House. And the Rajya Sabha can have a maximum 252 members in all. And 233 जो है members means 229 plus 4 from union territories, and all the members are to be elected from states and union territories, means 229 from states and 4 from union territories, and 12 are to be nominated by the president of India. Okay, ये दो डाटा है, you have to write in your copy or otherwise you have to remember this one. Now students, one of the most important points means the part of our Indian parliament, that is the officers of the parliament. सी कौन कौन मतलब ब्यूरोक्रेट्स हम लोग को यहाँ पे देखना है. देखो ये जो द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एक साइड मींस द राज्यसभा एंड ये साइड में जो है द हाउस ऑफ पीपुल्स. मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स मींस राज्यसभा का मेन जो है इनको एक्स ऑफिसियो चेयरमैन बोला जाता है, एंड हाउस ऑफ द पीपुल मींस लोकसभा का जो हेड है ये है स्पीकर. ओके, सो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन जो है मतलब हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि अभी वेंकैया नायडू है, ये राज्यसभा का मेंबर है एंड मतलब चेयरमैन है. एंड इसके नीचे आते हैं डेप्यूटी चेयरमैन, एंड यहाँ पे द लोकसभा का जो हाउस ऑफ द पीपुल जिसको बुलाता है नाउ स्पीकर मींस ओम बिरला, देन डेप्यूटी स्पीकर. ओके, मतलब ये है हमारा हेड ऑफ द both of the bodies means organs of our parliament, that is the Lok Sabha and Rajya Sabha. Okay, so duration of houses of parliament, duration कितना देखो, मतलब द काउंसिल ऑफ स्टेट्स मींस राज्यसभा का ड्यूरेशन जो है ये एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, एंड यहाँ पे द हाउस ऑफ द पीपल डिजॉल्व्स. ये 5 years टेन्यूर है इसका, इसलिए ये डिजॉल्व हो जाता है आफ्टर द 5 years, एंड हियर इज रिटन आफ्टर 5 years फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फ्रॉम इट्स फर्स्ट मीटिंग. मतलब जिस दिन वो अपॉइंटमेंट होते हैं उसी का ठीक 5 साल के बाद ये डिजॉल्व हो जाएगा मींस द लोकसभा. दैट्स व्हाई इट इज द टेम्पोररी हाउस ऑफ आवर पार्लियामेंट. But Council of States means Rajya Sabha not be subject to dissolution. ये बिल्कुल भी डिजॉल्व नहीं होता है completely.
तो क्या होता है यहाँ पे ना, 1/3 ऑफ मेंबर्स रिटायर ऑन एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर। 2 साल को एक बार 1/3 मेंबर्स यहाँ पे जो है एमपीस जो है ये लोग रिटायरमेंट लेते हैं। इन लोग का 6 ईयर्स इनका टाइम टेन्यूर जो है राज्यसभा का में जो एमपी होता है उनका टेन्यूर जो है ना 6 ईयर है। सो 2 साल को एक बार 1/3 मेंबर्स का 6 ईयर कंप्लीट हो जाता है एंड दे रिटायर्ड। Okay, so completely not dissolved. That's why not be subject to dissolution. Then one of the most important part of our Indian government, that is the how the bill becomes law. Students, one of the most important information from my side, you have to draw this one, otherwise you have to write in your copy how bill becomes law. ये तो अभी हम लोग पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर के बारे में जान चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस पार्लियामेंट में बिल पास कैसा होता है। ओके, सी हियर, फ्रॉम हियर इट इज स्टार्टेड। यहां से लेकर के हम लोग ऐसा आके हम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे। अंडरस्टूड? ये डायग्राम का जो स्ट्रक्चर है मैं बता दे रही हूँ पहले। ये है बिल से ये आएगा, ये ऐसा होके ये आके मतलब बिल बिकम्स लॉ, यहां तक आके पहुंचेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट, मींस अभी देखेंगे समझेंगे इसको। बिल को पहले मींस इंट्रोडक्शन इन एदर हाउस इन केस ऑफ नॉन मनी बिल। यदि मनी बिल नहीं है तो कोई नॉर्मल बिल है तो ये कोई भी हाउस में पहले आ सकता है। ओके, इंट्रोडक्शन इसका हो सकता है एनी इन एदर हाउस इन केस ऑफ नॉन मनी बिल। इसके बाद ये बिल सेंट टू कमिटी और डिस्कस्ड इन द हाउस इटसेल्फ। ये कोई भी यदि राज्यसभा में पहले इंट्रोड्यूस हुआ तो ये लोकसभा को जाएगा डिस्कशन करने के लिए। यदि लोकसभा में हुआ तो ये राज्यसभा को ये बिल को सेंड किया जाएगा। उसके बाद कमिटी गिव्स रिपोर्ट, कमिटी अपना रिपोर्ट देगा। देन हाउस में और मे नॉट एक्सेप्ट द रिपोर्ट, हाउस इसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा उसके ऊपर में डिपेंड। ओके, राज्यसभा को यदि लोकसभा भेजा है राज्यसभा को तो राज्यसभा होगा तो ये मतलब यदि एग्री है तो ये एक्सेप्ट करेगा, यदि डिसएग्री है तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। देन डिटेल डिस्कशन ऑफ बिल इन हाउस, यहाँ पे जो बड़ी ऑर्गन में है वहां पे डिटेल डिस्कशन होगा। देन बिल इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, इसके बाद ये डिस्कशन होने के बाद फिर बिल एक्सेप्ट हो सकता है, नहीं तो रिजेक्ट भी हो सकता है। इसका कुछ ठिकाना नहीं, मतलब रिजेक्ट भी होने का चांस है। लेकिन सेंड टू द अदर हाउस, यहाँ पे जो भी होगा इसके बाद ये अदर हाउस को सेंड करेगा। मतलब यदि लोकसभा है तो राज्यसभा को करेगा, यदि राज्यसभा है तो लोकसभा को करेगा। सेंड टू अदर हाउस, देन अदर हाउस अप्रूव्स और गिव्स रिकमेंडेशन। उसके मतलब अदर हाउस जो है ये अप्रूव करेगा, नहीं तो ये अपना राय देगा, ओपिनियन देगा, रिकमेंडेशन देगा। अच्छा, यदि ये दोनों हाउस के भीतर में राज्यसभा लोकसभा के भीतर में if any dispute will be create then joint session of parliament if required। इसको ये थोड़ा सा साइड करके इसलिए दिया गया है क्योंकि ना हर समय में ऐसा जॉइंट सेशन नहीं होता एंड यदि जब बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हो रहा है तो प्रेसिडेंट ये जॉइंट सेशन का मतलब बुलाएंगे। ओके, प्रेसिडेंट का अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट रिक्वायर्ड, यदि जरूरी होगा तो। लेकिन जब जॉइंट सेशन हो जाएगा ना तब भी यहाँ पे स्पीकर ही हैंडल करेंगे वो हाउस को, दोनों को मिला करके। ये एक्स्ट्रा है, ये होगा नहीं तो नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये जो है ना ये प्रॉपर प्रोसेस, बिल इज रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड, सेंड टू द अदर हाउस अप्रूव्स और गिव्स रिकमेंडेशन। यहाँ पे अदर हाउस अप्रूव भी करेगा, यदि सेंड रिजेक्टेड एक्सेप्टेड कुछ रिजेक्टेड यदि नहीं हुआ तो अदर हाउस यहाँ पे अप्रूव करेगा एंड रिकमेंडेशन अपना भेजेगा। उसके बाद दोनों बॉडी ऑर्गन में ये रिकमेंडेशन पूरा कंप्लीटली क्लियर होने के बाद ये आएगा प्रेसिडेंट के पास। मींस प्रेसिडेंट अप्रूव्स और सेंड बैक फॉर रिकंसिडरेशन। प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करेंगे, नहीं तो उनको यदि पसंद नहीं आया तो ये पूरा फिर बैक करेंगे यहाँ तक। पूरा ऐसा ही प्रोसेस में यहाँ तक फिर यहाँ पे आएगा। ओके, यहाँ पे आएगा, लेकिन ये सब चीज 14 दिन के भीतर में होना चाहिए। 14 days ओनली इट विल टेकन। देन इसके बाद फिर वही प्रोसेस में जब नेक्स्ट टाइम आके पहुंचेगा प्रेसिडेंट के पास, ड्यूरिंग द टाइम प्रेसिडेंट मींस फॉर प्रेसिडेंट इट इज कंपल्सरी टू
अप्रूव दिस वन। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब रिटर्न होकर के आएगा तो प्रेसिडेंट यहाँ पे जरूर अप्रूव करेंगे। प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो जाने के बाद बिल बिकम्स लॉ, बिल लॉ में चेंज हो गया। ओके, तो it is the critical procedure of our Indian parliament. So students, you have to remember and write all the points in your copy. Okay, so what happens in parliament? यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है। सी क्वेश्चन आवर किसको बोलते हैं? 11 से 12 pm, 11 am से 12 pm, 12 pm से लेके 1 pm तक 0 आवर बुलाता है। मतलब 11 से 12 pm में कीप द गवर्नमेंट इन चेक, रिप्रेजेंट पीपुल। क्वेश्चन आवर में गवर्नमेंट सब कुछ चेक करता है। यहाँ पे लोगों का क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पे डिस्कशन होता है इतना टाइम के समय में पार्लियामेंट में। 12 से 1 बजे जो है ना 0 आवर बुलाता है, मतलब रिप्रेजेंट पीपुल। 1 से 2 बजे के भीतर में लंच आवर है। 2 से 3 बजे के भीतर में मतलब गवर्नमेंट बिजनेस, लेजिस्लेटिव बिजनेस। तो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, मतलब टोटल ये 2 से 5 बजे तक राज्यसभा टिल 5 pm तक होता है। मेक लॉस एंड पास द बजट। इतना टाइम के भीतर में ये सब डिस्कशन होता है। लॉ मेकिंग यदि होना है तो होगा, नहीं तो बजट पास होगा। सो लोकसभा टिल 6 pm, राज्यसभा का टाइमिंग 5 pm है, लोकसभा का टाइमिंग जो है कि 5 से और 6 pm तक और 1 घंटा ज्यादा है। मतलब ये दोनों में लॉ मेकिंग होगा, नहीं तो बजट पास होगा। Okay, so students, next time means Government of India, here is given the 3 important list, that is the union list, state list and concurrent list. What is the different list and what is the significance of that word? Government of India introduced the different list of our for the common citizen, yeah, for the smooth running of the government. We will discuss in the next period. So I think all the students will watch clearly and write down in your copy, means you will write your copy. Also you have to remember for the better understanding and for the better understanding. So students, that much only for today, and next video I will discuss with you about the Government of India, means the important 3 list of our Indian constitution, Indian government, Indian parliament, that is the union list, state list and concurrent list. So till then, bye. Thank you all of you.